Good morning, smart learners of APS. How are you all? Hope you all are fit and healthy. First of all, let's pray to God to seek His blessings. All of you, join your hands for morning prayer. शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पूरे अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली ये जिंदगी दे, वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल करती कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Let's continue our chapter number 13. Name of the chapter is Structure and Functions of Plants. Today we will do page number 79 and 80. First of all, let's review the important points of the chapter that we discussed in our previous two videos. There are two main parts of a plant. Number one, root. Number two, shoot. Root is the part of the plant that grows under the soil. Root plant का वो पार्ट होता है जो कि मिट्टी के नीचे ग्रो करता है. Root fixes the plant in the soil. Shoot. Shoot is the part of the plant that grows above the soil. वो पार्ट प्लांट का जो कि मिट्टी से ऊपर ग्रो करता है उसे शूट कहते हैं. शूट के बेटा फर्दर पार्ट्स होते हैं. स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड. स्टेम क्या काम करता है? स्टेम कैरीज वाटर एंड फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम फूड और वाटर को प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम करती है. Leaf makes food for the plant and it is called the kitchen of the plant. Flower. A bud blooms into flower. Flower के अंदर एक sweet smelling liquid होता है जिसे हम कहते हैं nectar. Honeybees and butterflies suck the nectar of the flowers. Fruit. A fruit develops from the flower. फ्लावर से ही फ्रूट बनता है. एंड अ फ्रूट हैज सीड्स इनसाइड इट. और फ्रूट के अंदर सीड्स होते हैं. जब हम फ्रूट को कट करते हैं तो उसमें सीड्स होते हैं ना. जब हम एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं या गवावा खाते हैं तो उसमें सीड्स होते हैं. सीड का क्या काम है? अ सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट इफ इट गेट्स फेवरेबल कंडीशन. अगर एक सीड को फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं तो वो बेबी प्लांट में ग्रो हो जाता है. और फेवरेबल कंडीशंस कौन सी हैं? एयर, वाटर एंड वार्मथ. नाउ वी विल डू बुक वर्क, क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्टिविटीज ऑफ दिस चैप्टर. क्वेश्चन ए. टिक द करेक्ट आंसर. बेटा आपको करेक्ट आंसर टिक करना है. फर्स्ट वन, a bud changes into a flower
fruit, leaf. बट किस में चेंज होता है? फ्लावर में, फ्रूट में या लीफ में? विच इज द करेक्ट आंसर? Yes, flower. Option A is correct. So we will put a tick here. Second, there are dash types of roots. Roots बेटा कितनी तरीके की होती हैं? 3, 2 या 4? Which is the correct answer? Yes, 2. Option B is correct. So we will put a tick here. Third, the tiny pores present in the leaf are called stomata, veins, apex. जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ पर उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा, वेन्स या एपेक्स? विच इज द करेक्ट आंसर? यस, स्टोमेटा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो वी विल पुट अ टिक हियर. फोर्थ, फ्रूट्स कंटेन फ्लावर्स, सीड्स, बर्ड्स. फ्रूट्स के अंदर क्या होता है बेटा? फ्लावर्स, सीड्स या बर्ड्स? विच इज द करेक्ट आंसर? Yes, seeds. Option B is correct. So we will put a tick here. Question B. Write true or false. There are 4 statements. You have to write whether these statements are true or false. First one. The stem is the underground part of a plant. Stem plant का underground part है. Is it true? No, it is false. We will write false here. Number 2, the leaf is called the kitchen of the plant. Leaf को plant की kitchen कहते हैं. Is it true? Yes, it is true because it makes food for the plant. Third, the fruit changes into a flower. Fruit flower में change हो जाता है. Is it true? No, it is false. Because a flower changes into a fruit. So we will write false here. Fourth, the potato is an underground root. Potato एक underground root है. No, it is false because the potato is an underground stem. Question C. Fill in the blanks with the right word from the box. Beta, one help box is given over here. You have to choose the correct word from the help box and fill the blanks. First one, the 2 types of roots are dash and dash. 2 तरीके की रूट कौन कौन सी हैं उनके आपको यहाँ पर नेम लिखने हैं. हेल्प बॉक्स में देखिए. यस, फाइब्रस एंड टैप रूट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फाइब्रस एंड टैप रूट. सेकेंड, the stem of a tree is called a dash. ट्री की स्टेम को क्या कहते हैं? सी द हेल्प बॉक्स. यहाँ पर देखिए कौन सा वर्ड आएगा? यस, ट्रंक. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ ट्रंक. तो हम यहाँ पर ट्रंक लिखेंगे. थर्ड, द डैश मेक फूड फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स के लिए खाना कौन बनाते हैं बेटा? Yes, leaves. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Leaves. The leaves make food for the plants. Fourth, the dash gives rise to a new plant. नया पौधा बेटा किससे बनता है? Yes, seed से. The seed gives rise to a new plant. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? Seed. Question D. Answer these questions. There are 5 questions. You have to write down answers of these questions in your notebook in neat and clean handwriting. First one, what are the functions of root stem? आपको root और stem के functions लिखने हैं. Root के क्या functions है बेटा? Number 1, root fixes the plant in the soil. Number 2, root absorbs water and minerals from the soil. अब stem के क्या function है? Number 1, stem carries food and water to all parts of the plant. Number 2, stem of some plants store food in them. For example, ginger, potato. Question 2. What is a leaf blade? Leaf blade क्या है?
The broad and flat part of the leaf is called a leaf blade. Question 3. What is the function of stomata? Stomata का क्या function है? Stomata help the plant breathe. Stomata plant को breathe करने में help करते हैं. Question 4. Draw and label the parts of a leaf. आपको एक लीफ का डायग्राम ड्रॉ करना है और उसके पार्ट्स को लेबल करना है. एंड दैट डायग्राम इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 75. आप वहाँ से देखकर इस डायग्राम को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और उसके डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करेंगे. ओके. क्वेश्चन 5. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. क्वेश्चन ई. थिंक एंड आंसर. बेटा यहाँ पर 2 क्वेश्चंस गिवन हैं, आपको इनके आंसर्स सोच के लिखने हैं. फर्स्ट वन. व्हाट विल हैपन टू अ प्लांट इफ इट्स रूट्स आर कट? अगर एक प्लांट की रूट्स को कट कर दिया जाए तो क्या होगा? सोचिए क्या होगा. बेटा आप सबको रूट्स का फंक्शन पता है ना. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं. अगर रूट्स नहीं होंगी तो क्या होगा? वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा. और अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा तो पूरे प्लांट को वाटर कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा ना. तो क्या होगा? द प्लांट विल विल्ट. प्लांट मुरझा जाएगा एंड अल्टीमेटली इट विल डाई. क्वेश्चन 2. प्लांट शुड नॉट बी केप्ट इन क्लोज्ड रूम्स. व्हाई? प्लांट्स को बंद कमरों में नहीं रखने चाहिए. क्यों? बेटा प्लांट्स को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? यस, सनलाइट. और अगर हम प्लांट्स को क्लोज्ड रूम्स में रखेंगे तो क्या होगा? प्लांट्स को सनलाइट नहीं मिलेगी. और अगर सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाएंगे? और अगर वो खाना नहीं बनाएंगे देन वो कैसे जीवित रहेंगे? इसलिए वी शुड नॉट कीप प्लांट्स इन क्लोज्ड रूम्स. वी शुड कीप देम इन ओपन. एक्टिविटी टाइम. मुझे पता है आपको एक्टिविटी टाइम का सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है. फर्स्ट एक्टिविटी, डिस्कस फोटोसिंथेसिस. बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था व्हेन आई एक्सप्लेन्ड यू द चैप्टर. अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स में भी किया और अब मैं आपको फोटोसिंथेसिस दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ. बेटा फोटोसिंथेसिस क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. वो प्रोसेस जिससे कि प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं. अब पौधों के लिए खाना कौन बनाते हैं? लीव्स बनाते हैं. लीव्स क्या करते हैं बेटा? वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में वो पौधे के लिए खाना बनाते हैं. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज ऑक्सीजन and this oxygen we use for breathing. I hope now process of photosynthesis is clear to you. Activity 2. Build a terrarium. बेटा आपको इस एक्टिविटी को करने में बहुत मज़ा आने वाला है. टेरेरियम होता क्या है? A terrarium is a glass container in which selected living plants are grown and observed. टेरेरियम एक ग्लास कंटेनर होता है जिसके अंदर हम एक छोटा सा प्लांट ग्रो करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं. मैं आपको टेरेरियम बनाकर दिखाऊंगी. तो चलिए टेरेरियम बनाना शुरू करते हैं. टेरेरियम बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ब्रॉड माउथ ग्लास. कोई आप प्लास्टिक का ग्लास ले सकते हो या फिर कांच का ग्लास ले सकते हो. ठीक है, जैसे कि ये मैंने ग्लास लिया. अब इसमें सबसे पहले हमें डालने हैं स्टोन्स. स्टोन्स की एक लेयर डालने के बाद हम इसमें ड्राई लीव्स और ट्विग्स डालेंगे. उसके बाद इसमें हम सॉइल डालेंगे. सॉइल डालने के बाद जो भी हमारे पास एक प्लांट है जिसको हम देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, This is the broad mouth glass. प्लांट को हम इसमें लगा देंगे.
ठीक है। डेकोरेशन के लिए आप ग्रास भी साथ में लगा सकते हो, ग्रीन ग्रास। वाटर देने के लिए आप स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं या फिर आप स्पून से इसमें वाटर दे सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, टेरेरियम तैयार है। आप घर में भी इस टेरेरियम को बना सकते हैं। ओके। देयर इज वन मोर एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी इज गिवन इन योर बुक ऑन पेज नंबर 77. What you have to do in this activity? You have to make sprouts. तो ये एक्टिविटी बेटा मैं पहले आपको करके दिखाऊंगी, उसके बाद आप इस एक्टिविटी को अपने घर पे करेंगे। ओके बेटा, स्प्राउट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ग्रीन ग्राम। ये देखो ग्रीन ग्राम, जिसको हम बोलते हैं साबुत मूंग। ये सबके घर में होती है साबुत मूंग, ठीक है। फिर इस साबुत मूंग को क्या करना है, हमने अच्छी तरीके से वॉश करके पूरी रात पानी में भिगा कर रखना है। देखो मैंने रात से भिगा रखी है इसको, ठीक है। रात को भिगाने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में आपने इसके पानी को ड्रेन करना है, ठीक है। ड्रेन करने के बाद इस मूंग को आपने एक कंटेनर में लेना है। और उसको अच्छी तरीके से ढककर रख देना है 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स के बाद बेटा आप देखोगे कि आपकी मूंग से ये व्हाइट व्हाइट थ्रेड्स निकल जाएंगे। ये व्हाइट थ्रेड्स क्या है बेटा, यंग रूट्स। और यही हमारे क्या है, स्प्राउट्स, विच आर फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। बेटा इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, वी लर्नड अबाउट different parts of plant, their function and how plants are useful for us. Fruits and vegetables are protective foods. They protect us from diseases. Now there is one activity for you. You have to make your own salad. मैं आपको सैलेड बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद आप घर पर सैलेड बनाइएगा और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ एंजॉय करिएगा। तो चलिए सैलेड बनाना शुरू करते हैं। बेटा सैलेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आपकी जो भी मनपसंद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो आपने लेने हैं, उन्हें अच्छी तरीके से वॉश करना है। उसके बाद इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को घर के किसी फैमिली मेंबर से, बड़े फैमिली मेंबर से कटवाना है और उसको एक बॉल में डाल लेना है। जैसे मैंने ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सारी कट करके एक बॉल में डाल। अब हमें क्या करना है, हमारे पास ड्रेसिंग के लिए क्या है, ब्लैक पेपर पाउडर। हम इसमें ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे। दिस इज ब्लैक सॉल्ट। अगर आपके पास चाट मसाला, आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। टेस्ट के लिए हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, ठीक है। देखो बेटा हमने अभी स्प्राउट्स बनाए थे, तो हम इसमें स्प्राउट्स भी डाल सकते हैं। हम इसको रॉ भी डाल सकते हैं, कच्चे भी डाल सकते हैं, या इसको हम हल्का सा बॉयल करके, आप अपनी मम्मा को कहकर इसको हल्का सा बॉयल करवाकर फिर भी डाल सकते हो, ठीक है। ये आपकी चॉइस है। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा हमारा सैलेड तैयार हो गया है, ठीक है। ये हमारा है सैलेड, इसको आप बनाइए और इंजॉय करिए। नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। डू बुक वर्क ऑफ चैप्टर 13 इन द बुक एंड राइट क्वेश्चन आंसर इन नोटबुक। Thank you. Meet you soon in the next video. Take care of yourself. Stay home. Stay safe. Bye.